Hello everybody. Welcome to iExamB. This is Amrita, and in this video today we are going to have a discussion on past year questions from the subject of Constitution in SEBI Grade A Legal Officer examination. But before we start with our discussion, let me just tell you that for relating to any updates for government exams, iExamB is there at your doorstep for help. You just have to press on the bell icon and subscribe to our YouTube channel. Also, at hello@iexamb.com, you can write to us anytime. Feel free to call on this number, and also for any other updates, stay tuned to www.iexamb.com. Now, starting with our discussion relating to SEBI Grade A previous year questions from the subject of Constitutional Law. फ्रेंड्स सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन का जो 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर है, रिमेंबर दिस इज अ मेमोरी बेस्ड पेपर दैट वी हैव क्रिएटेड एट iExamB and it is for both phases, phase 1 as well as phase 2. In today's first video of this series, which I am going to continue, I will be starting with the subject of constitutional law. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सेबी में जो जो क्वेश्चंस आए थे मेमोरी बेस्ड पेपर के अकॉर्डिंगली फेज 1 एज वेल एज फेज 2 से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. किस तरीके से हेल्प करने वाला है ये भी मैं आपको बता देती हूँ. द रीज़न इज, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या जो भी सब्जेक्ट्स पे मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बनाने वाली हूँ वो सब देखने के बाद आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि एक्चुअली किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से ट्रिक किया जाता है, कितने बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से फ्रेम होते हैं क्वेश्चंस, ये सब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा इन वीडियोस से. सो डू टेक हेल्प ऑफ दीज वीडियोस एंड फेज योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली. Starting with phase 1, the very first MCQ question was, words of the preamble were amended to add. This has been picked from preamble. Option A, secular only. Option B, socialist only. C, secular as well as socialist. D, republic as well as socialist. E, republic only. Now this is a very easy question and I expect you all to write your answers in the comment box as well, as it will be very useful for you also, as it will help you understand that actually how the questions are framed and how much you know. So the answer to this question is secular and socialist. 42nd amendment that was made to the constitution, we all are aware about, that has changed the description of India from a sovereign democratic republic to a sovereign socialist secular democratic republic, and has also changed the words of unity of nation to unity and integrity of the nation. अब इस बार क्वेश्चन प्रियम्बल से 42nd अमेंडमेंट से रिलेटेड आया था कि सेक्युलर और सोशलिस्ट ऐड हुआ है. नेक्स्ट टाइम ये भी आ सकता है, यूनिटी ऑफ द नेशन हैज बीन चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. तो इससे ये जो एरियाज है ना, इनको आप मार्क कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए कि ये एरिया से क्वेश्चंस आते हैं. थोड़ा सा चेंज होगा, ट्विस्ट होंगे क्वेश्चंस, बट एरियाज आपको समझ में आ जाएंगे जैसे प्रियम्बल से पूछा गया था. सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ अ स्टेट नीड्स टू बी अमेंडेड then which of the following schedules of the Indian Constitution must be amended? Options: first schedule, second schedule, third schedule, 12th schedule, 7th schedule. Answer is first schedule. This is also a very basic question. Constitution पढ़ रहे हो या जो भी एक्ट पढ़ रहे हो तो आपको उसका एक्चुअली पहले स्ट्रक्चर रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सब भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं. प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. It contains the number of names of states and union territories that is included in first schedule. So obvious है कि इनमें ही अमेंडमेंट होगा. टेरिटोरियल jurisdiction भी स्टेट्स का बताया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो यू कैन मार्क कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन relating to council of ministers. State council of ministers is maximum how much % of legislative assembly or council? ये भी constitution में provision है.
एग्जैक्टली प्रोवाइड किया गया है. ऑप्शंस आर 25, 30, 10, 5 to 10 रेंज और 15%. आंसर इज ई. एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं. द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल इज द सेम एज इन द केस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब यहाँ पे ये भी आपको याद रखना होगा कि यूनियन और स्टेट लेवल पे दोनों सेम है. तो अगर क्वेश्चन स्टेट लेवल से आए या यूनियन लेवल से आए तो स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी not more than 15% of the state strength of state legislative assembly and respectively as for the union as well. An ordinary bill has to go through the following stages to become an act. बिल रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब सेलिब्रेटेड एरियाज ही हैं फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आप लोग देख रहे हो अभी तक तो हमने सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लेकिन सारे ही बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल एरियाज है. आई कैन से ये आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने पढ़ा हुआ ही होता है. बहुत बेसिक क्वेश्चंस है फ्रेंड्स. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रीडिंग एंड असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सिर्फ एक सिंपल प्रोसीजर है. ऑल स्टेजेस एज मेंशन्ड इन ऑप्शन बी. एन इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द सेकेंड हाउस, फर्स्ट, सेकेंड रीडिंग एंड असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग only is enough as for an ordinary bill. मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, ये सारे प्रोसीजर्स आपको पता होने चाहिए. आंसर इज सी. ऑल द स्टेजेस दैट आर मेंशन्ड इन ऑप्शन बी and introduction of bill in the second house all together is actually the stages, number of stages through which an ordinary bill has to go through. So ordinary bill, next time कभी क्वेश्चन में मनी बिल से भी आ सकता है. क्या डिफरेंसेस हैं, क्या प्रोसीजर है, ये आपको पता होना चाहिए. इसके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल 107 एंड 108 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. एज यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन एज वेल. ऑर्डिनरी बिल इज इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इट कैन बी अमेंडेड, रिजेक्टेड बाय राज्यसभा. इट कैन ऑल्सो बी डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. कभी पीरियड से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इट कैन बी डिटेन्ड फॉर हाउ मच पीरियड. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू keep in mind as well as these article numbers. Education as a fundamental duty provides for the education for the age group of 6 to 14 years, 0 to 5 years, 6 to 12 years, above 14 years, up to 14 years. This is also an important question. Fundamental duties को उन्होंने education से relate करके question बताया है. कभी कभी यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे हैं. फंडामेंटल ड्यूटी में तो है ही, फंडामेंटल राइट में भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है. बट यहाँ पे उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड पूछा है एंड द आंसर इज 6 to 14 years. Education has been made as a fundamental duty and this has been done by, it is the duty of every parent. And article 51A talks about these fundamental duties. We all know article 51A में सारे fundamental duties दिए गए हैं. Earlier there were 10 only. Later the 11th duty was added, that is related to education, and it was added by which amendment? ये भी important है, by the 86th amendment. Now going to phase 2 related questions. phase 1 से questions हमने discuss कर लिए हैं. अब phase 2 के questions देख लेते हैं जल्दी से. In the Constitution of India, in the statement, law inconsistent with or in derogation with fundamental rights, law includes. This statement बहुत ही common है, पढ़ा हुआ है. Which article is this? Anybody wants to guess? Yes, it is Article 13, of course. Any ordinance, the options are any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, custom, usages, whatever is included in the definition of law, ये पूछा गया है. Any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, usages having in the territory of India the force of law, laws passed or made by the legislature, laws passed or made by the legislature or other competent authority in the territory of India. Article 13 अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप within 30 seconds आंसर कर सकते हो. The answer is C. It includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, usages, all of these having the force of law are included in the definition of law. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है. ये सब स्मॉल
जो डिटेलिंग है ये इम्पॉर्टेंट होती है. द वे यू स्टडी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. रिमेंबर दैट. एंड दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3 of the constitution. You can go and read this article and have a good idea and also knowledge relating to such kind of questions. इस वीडियो को आप पॉज करके भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं. एंड ऑल्सो वी हैव अटैच्ड द पीपीटी इन द डिस्क्रिप्शन. सो आप कभी भी ये क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से. इन क्वेश्चंस को बाद में पढ़िए. इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. डिटेल एनालिसिस यू कैन फॉर्म ऑन योर ओन ऑफ दिस. Next question, Article 14 of the Constitution of India states that. Now this is directly picked from the article itself, like Article 13. This is also similarly Article 14 का statement. यहाँ पे options आप देख रहे हो, ज़्यादा difference नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा उन्होंने statement में changes लाए हैं. State shall not deny to any person equality before law, equal protection of law, grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. All of these options you can see. एक्चुअली अगर आर्टिकल 14 आपको पता है तो ये तो आप सिर्फ 10 सेकेंड्स में आंसर कर सकते हो. स्टेट प्रोहिबिट्स state and the option is state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law. Article 14, mark it, though we know it is very important article of the Constitution. Which of the following words were added to the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act? 42nd Constitutional Amendment Act preamble ये ना phase 1 में भी आया है और phase 2 में भी आया है. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेक्युलर, सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक. आंसर इज बी. ये हमने अभी डिस्कस किया है. ये फेज 1 एज वेल एज फेज 2 में आया था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 42nd अमेंडमेंट ऑल्सो अमेंडेड प्रियम्बल एंड चेंज द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम दिस. सेम एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है दोनों ही क्वेश्चंस के लिए. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स आर प्रेजेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? रिट्स के बारे में हमें आइडिया तो है ही. देर आर 5 काइंड्स ऑफ रिट्स, सो वी शुड नो ऑल द रिट्स एंड ऑल्सो द मीनिंग्स ऑफ ऑल द रिट्स. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी. आर्टिकल 32 क्लॉज 2 प्रोवाइड्स फॉर ऑल ऑफ दीज रिट्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड आर्टिकल 32 ऑफ कोर्स इज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. रिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्लियामेंट रिलेटेड, इवन प्रेसिडेंट रिलेटेड, ये सारे जो पार्ट्स हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सब स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ों से बहुत बेसिक क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. सो ये सब आपको बहुत थॉरली प्रिपेयर करना होगा. दिस इज द क्रक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शंस आर शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट. अब ये एनफोर्सेबिलिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे पार्ट 4 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. पार्ट 3 और पार्ट 4 को मिला के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट नॉट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज. Shall be enforceable by any court, but principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country. Shall not be enforceable by any court, but principles therein that are laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country. Answer is of course the last option. Fundamental rights से related है part 3 constitution का. And article 37 of the constitution provides that part shall not be enforceable by any court, but they are nevertheless fundamental in governance of the country. यहाँ पे पार्ट 3 नहीं होना चाहिए. एक्चुअली देर वॉज अ टेक्निकल डिफिकल्टी वाइल प्रिपेयरिंग द पीपीटी. इट शुड बी पार्ट 4 ओवर हियर. आर यू गेटिंग इट? ये क्वेश्चन आया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, बट सिमिलरली पार्ट 3 से रिलेटेड भी आ सकता है. दो इट वॉज पोस्ट फॉर पार्ट 4, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये आएगा एंड उसका करेक्ट आंसर आएगा दैट इट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट,
but the principles are nevertheless fundamental in the governance of the country. ये आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, उनके को रिलेशन से रिलेटेड काफ़ी केसेस भी हैं जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए हैं. सो ये सब आपके माइंड में फिट होना चाहिए. इट शुड बी ऑन द फिंगर ऑफ योर टिप्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन. डायरेक्टली दो केस लॉज नहीं पूछे जाते, बट ये प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं. जैसे यहाँ पे आर्टिकल्स रिलेटेड पूछा गया था इनडायरेक्टली. अगर आपको आर्टिकल पता है तो आप ये 10 सेकेंड्स में आंसर कर सकते हो. ओके, so the last question for our discussion today is Parliament may by law provide for adjudication or trial by administrative tribunals of the disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons that are appointed. अब ये service related question है. Article 323 of the Constitution provides for this. ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए. पहले ऑप्शंस तो हम देख ही लेंगे, बट हमारा ये क्वेश्चंस डिस्कस करने का मेन मोटो क्या है, टू कार्व आउट कौन से प्रोविजंस और कौन से एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए थे. दैट मैटर्स फॉर अस, क्योंकि ये कंसेप्ट्स चेंज होते हैं, क्वेश्चंस फॉर्मिंग चेंज हो सकती है, बट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हमें पता होने चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो ये जो है इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. Second last option, public services and posts that are in connection with affairs of the union or any state or any local authority within the territory of India or control of the government. ये as it is जो है आर्टिकल 323A में प्रोवाइडेड है. आप जाके चेक भी कर सकते हो. आर्टिकल 323 provides for this that Parliament may by law provide for adjudication or trial of administrative tribunals of disputes by administrative tribunals, and for which services and posts, these services and posts specifically. So यहाँ से भी questions आते हैं. Okay, I hope this discussion is very helpful for you all, और आप इन सब questions में से greatest advantage उठाएंगे. Before I take leave, let me tell you, अभी festive season चल रहा है, दशहरे का टाइम है. नव विजय स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट iExamBee. Flat 32% off is available on all online courses. This is the coupon code you can see here. So go and enroll for whichever course you are preparing, right? Be it SEBI, be it other courses. We have for RBI, we have for IBPS, SO, लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए तो है ही, बट फॉर अदर स्ट्रीम्स एज वेल iExamBee is covering comprehensively various online courses. All the ExamBee mock tests, iExamBee mock tests are free at www.iexambee.com. Take note of this. We have expert faculty of law at iExamBee. आपके कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या आपको कोई चीज़ों पे रिलेटिंग टू एग्जाम, यू हैव एनी डाउट्स, यू हैव एनी expectations from iExamBee, you can write to us in the comment section. You can also visit to www.iexambee.com. And yes, a reminder again, don't forget to subscribe to our YouTube channel and stay tuned for more updates relating to iExamBee. Government exams are made easy over here. Thank you.